और सिर्फ वचन के लिए नहीं पर आराधना में आप एक हो जाइए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं परमेश्वर को, लेकिन उसने जिस कारण से हमें बनाया है, हमारे होठों को उसने स्पर्श किया, हमें चुना कि हम उसकी स्तुति कर सके, तो हम क्यों ना उसको पवित्र पवित्र कहें, है ना। We thank you for this evening, Lord. आज शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, We thank you for your presence, Lord. धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए, We love you, Lord. तुझसे प्रेम करते खुदा, Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं, We thank you for all that you have done in our lives, Lord. धन्यवाद करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए जो तूने हमारे जीवन में किया है। We love none but you, Lord. धन्यवाद करते हैं कि हम और किसी को नहीं पर तुझसे प्रेम करते हैं, Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। We thank you for you never leave, you never forsake us, Lord. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू न कभी छोड़ता है न कभी त्यागता है, You never let us walk alone, Lord. और कभी हमें अकेला नहीं चलने देता। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। We love you, Lord. Thank you, Lord. We need you, Father. हमें तेरी जरूरत है खुदा। Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, I need you. Lord, I need you. Oh, I need
तेरी जरूरत है खुदा। Thank you. धन्यवाद परमेश्वर, We need you in this situation, Father. इस परिस्थिति में मुझे तेरी जरूरत है। We need no one but you, Lord. हमें और कोई नहीं, बस केवल तू चाहिए बस। I request Brother Edwin to please pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, we praise you. We worship you and adore you, Father, for your blessings, Lord. Father, your word says, Lord, that your anointing breaks every yoke, Father God. And we believe, Lord, that you have heard unto our prayer, Lord, because you're a prayer answering God, Lord. You have heard into our worship, Father God. We thank you for your presence, Lord. We thank you for your presence, Holy Spirit. Oh, Father, we praise you. We love you, Lord. We adore you, Lord. There is nothing, Lord, besides you, Father. Nothing compares to you, Lord. You are an awesome God, Lord. You are a most powerful God. You are a God full of love and grace, Lord. You're a God full of mercy, Lord. Lord, we praise you, Lord. We praise you, Lord. Thank you for showing your mercy upon us, Lord. Thank you, Lord, for your mercy upon us, Lord. Oh, Lord, for mercy triumphs over judgment, Father God. Oh, we praise you, we praise you, we praise you, Lord. Thank you for accepting our praise and worship, Father God. Father, you be glorified, Lord. You be magnified, Lord. Your name be above every name, Father God. Lord, every mouth that testifies your name should be only for you and your glory, Lord. Yes, Father God, we praise you, Lord. We praise you for wonderful time, Lord. Thank you once again for answering every prayer of us. In Jesus' name we pray. Amen. I want to give glory to God, to Jesus for protecting my family, even though they've been a lot of fever and cough and cold. But I thank Jesus that He has healed them and not given them any this thing, pain or anything like that. I just want to thank Him and give Him all the glory for this. मी जॉय सरांना पण फोन केला होता. मला हेड पेन आणि असं पूर्ण बॉडी पेन होत होतं आणि मी 1 महिना झाले अपडाऊन करते ऑफिससाठी आणि आमच्या ऑफिसमध्ये 2 ते 3 जण कोविड पॉझिटिव्ह पण भेटले होते, सर आणि आमचे जे कलीग्स आहेत ते. मी हॉस्पिटलमध्ये गेले. डॉक्टरांनी मला सांगितलं की तू कोविड टेस्ट करून सरांना फोन लावला की मला असं असं होतंय. जॉय सरांनी प्रेयर घेतली आणि आम्ही पण प्रेयर केली रात्री. मी गोळी न घेता मला त्याच रात्री बरं वाटलं प्रभू येशूच्या नावाने. आणि दुसरी गोष्ट, माझं वर्क फ्रॉम होम पुन्हा सुरू झालं. मी प्रेयरच की वर्क फ्रॉम होम सुरू होऊ दे म्हणून, आणि वर्क फ्रॉम होम पुन्हा सुरू झालं त्यासाठी मी थँक्यू बोलते. धन्यवाद. मेरी सिस्टर है, उनकी एक गवाही है। तो बाइबल मेरी सिस्टर मिशन ने मेरे को अच्छा किया और घर पे भी थोड़ी शांति हुई है। Few days back, I had fever and very bad body pain. I was not feeling to get up from the bed. I thank God. I prayed to Him, and by Jesus' stripes I'm healed. Thank you, Jesus, for healing me. धन्यवाद देते. खरोखर परमेश्वर महान आहे. त्यांना खूप त्रास होत होता, म्हणजे तो पहिलाच त्रास होता. छातीमध्ये असं एकदम त्यांची हवा अशी कोंडल्यासारखी वाटत होती, तर खूप त्रास झाला. आम्ही दवाखान्यामध्ये गेलो, तिकडं खूप चेक पण केलं, तर त्याच्यामध्ये 2000ची टेस्ट केली तरी त्याच्यामध्ये काहीच नाही निघलं. आम्ही दवाखान्यातून जाऊन आलो, त्याच्यामध्ये काहीच नाही सांगितलं टेस्ट मध्ये. मग घरी आल्यावर पण प्रार्थना वगैरे केले. 2 दिवसांनी प्रार्थनेनेच ते थांबला. किती 3-4-5 दिवस झाले की ते एकदम थांबलेलं आहे. त्यांनी त्याचा काही म्हणजे त्रास होत नाही. मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देते की आम्ही ज्या वेळेस टेस्ट केली ना, तसं आम्हाला वाटलं की म्हणजे काहीतरी छातीमध्ये निघून त्यांना खूप त्रास होत होता, पण त्या टेस्ट मध्ये काहीच निघलं नाही. मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देते की ते प्रार्थनेमध्येच म्हणजे त्यांना आराम भेटला. मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. आणि माझा एक हात अचानक म्हणजे असं पहिल्यासारखाच इथं असं एकदम स्थिर असे फुगल्यासारखे झाले. तर मी म्हटलं देवाला, आता देवाजवळ प्रार्थना केली की तूच आम्हाला घडवलेले, तूच आम्हाला तारणारा, तूच आमचा मारणारा, की परमेश्वर एवढे आजार बाहेर पसरत आहेत, पण तू आमचा सांभाळ करणारा तू देव, असं हातावर ठेवून प्रार्थना केली. की त्याच क्षणामध्ये म्हणजे 5-10 मिनिटांनी मी बघितलं की माझा हात गोळी न खाता म्हणजे पूर्ण काय हात हा बरा झाला. देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देते की जसं जसं आम्ही
प्रार्थनामध्ये परमेश्वराचा अनुभव घेतो ना, तसं तसं परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये काय करते, कार्य करते. देवाच्या नावाला मी धन्यवाद करते. मुझे लगता है कि सिर्फ बाहर लॉकडाउन है, हमारे घर पर लॉकडाउन नहीं है और हमारे हृदयों में भी लॉकडाउन नहीं है. अगर हमें अर्जेंसी हो या ऐसे ही बाहर जाना हो तो मैं अभी भी जा सकती है, करेक्ट. तो प्लीज़ आप अपने उस लॉकडाउन से बाहर आ जाइए और प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें. सबको मालूम है कि परमेश्वर जो है नियुक्त किए हुए समय पे आता है. हालेलुया. नियुक्त किया हुआ समय मतलब ठहराया हुआ समय, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर को जब हम पुकारें तो समय लगा दे वो, है ना. हम चाहेंगे कि तुरंत आंसर मिले, है ना. तो क्यों ना हम परमेश्वर की क्योंकि हमें मालूम है, बाइबल कहता है कि जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मैं मौजूद रहता हूँ, यानी परमेश्वर खुद उपस्थित रहता है. और कल को बहुत तकलीफ हो गया था, बहुत वोमिटिंग और बहुत ही लूज मोशन हो गए थे, लेकिन परमेश्वर सच में अच्छा है, सच में भला है. पूरा दिन तकलीफ थी लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सुरक्षित उसको रखा, कोई हानि नहीं होने दी. और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती है. और उसे आइसक्रीम चाहिए थी जो मैं नहीं दे रही थी बहुत दिनों से, लेकिन प्रभु ने उसे मुझे लगता है बहुत बड़ा आइसक्रीम के पैकेट से आश्रित किया. लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है, हमारे विचार से परे काम करता है और हमें दिखाता है कि वो हमारे चारों ओर सुरक्षा का भाड़ा रखा हुआ है. और दूसरी बात, ये हफ्ता हम बहुत जगह पे गए थे और बहुत जगह ऐसा कोविड के पेशेंट्स आजू बाजू में दिख रहे थे, लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है. सच में वो हमें सिम्टम्स की ओर नहीं पर उसकी ओर जब हम निहारते हैं, वो हमारे लिए अद्भुत कामों को करता है. वो हमें अद्भुत तरीके से ढके रहा और सुरक्षित रखा. और मुझे जो कफ था वो भी प्रभु ने निकाल दिया. प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ. सच में अद्भुत परमेश्वर है जिसके बिना हम एक पल भी रह नहीं सकते. आइए हम उस अद्भुत जो पवित्र परमेश्वर है उसकी हम आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वो ही केवल योग्य, प्रभु यीशु ही केवल योग्य मेमना है. आइए हम उसे धन्यवाद दें. हम किसी योग्य नहीं हैं, पर वो ही केवल योग्य है. उसे कहे पवित्र, जो सर्व सामर्थशाली परमेश्वर है और योग्य है मेमना. आइए हम उसे कहे पवित्र. So grateful to you, each one of you, और हम आप में से हर एक का धन्यवाद करते हैं for the hunger and the love for the fellowship. और जो भूख है और जो प्यार है सहभागिता के लिए, For that we thank God. उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. अपने परमेश्वर को अपने पूरे सामर्थ के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ प्रेम करो. Saturday I was on a bike and I was outside. और शनिवार को मैं बाइक पर था और बाहर था. And again I was feeling a strength inside me. फिर से मैं अपने आप में ताकत को देख रहा था. Amazing strength. अद्भुत
ताकत, I अद्भुत was सामर्थ, enjoying God's मैं presence. परमेश्वर के उपस्थिति का आनंद उठा I रहा was था just celebrating His presence. और मैं उसकी उपस्थिति को मना रहा था। God is good. परमेश्वर अच्छा है। I came home and I saw और मैं घर पर आया और देखा the Word of God, परमेश्वर का वचन and I was started meditating over it. और मैं उसकी और मनन करने लगा And God was pleased to bless me with His Word. और परमेश्वर उसके वचन से मुझे खुश कर दिया। God is truly good. परमेश्वर सच में अद्भुत है His presence is awesome. और उसकी उपस्थिति अद्भुत है All we desire is He and Him. और केवल हमारी सब जो इच्छा है वो केवल वो है, उसी को पाना You know, है। Jesus said, "Go into the whole world and preach good news." और आपको मालूम है यीशु ने कहा कि पूरी दुनिया में जाओ, दुनिया के कोने कोने में और सुसमाचार को फैलाओ। We have good news in our mouth, हमारे मुख में सुसमाचार है and Jesus gave us. और यीशु मसीह ने हमें दिया So He है। said, इसीलिए उसने कहा "Go ye into the whole world." जाओ और इस दुनिया के कोने कोने में Start पहुंचो। from Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth. और यरूशलेम, यहूदिया और समरिया और दुनिया के कोने कोने में जाओ। So here we can see that how Abraham parted. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब्राहम कैसे अलग हुआ। 14th verse. फिर से हम पढ़ेंगे 14 वचन। He's armed his trained servants born in his own house, अब्राहम 318, and pursued unto Dan. अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। He divided himself against enemy. और उसने अपने आप को दुश्मन के विरुद्ध अलग कर दिया। Each and everyone knew that Abraham has come upon me. और हर एक जान गया कि अब्राहम मेरे विरुद्ध आ गया है। You know, when we go together against enemy, और आप जानते हैं जब हम दुश्मन के विरुद्ध जाते हैं साथ में, then enemy knows that Jesus has come. तब दुश्मन जान जाता है कि यीशु मसीह आ गया है। When enemy tries to persecute church, और जब दुश्मन कलीसिया को सताना चाहता है then तभी actually he is not persecuting church. हकीकत में तो वो कलीसिया को सताता नहीं, He is trying to persecute Jesus, who already paid price full to the full. वो यीशु मसीह को सताता है, जिसने सताने की कोशिश करता है, जिसने पहले से ही पूरी से पूरी कीमत चुका दी है। Hello, your Jesus paid full to the full. आपके यीशु ने पूरे से पूरी तरह कीमत चुका दी है। You should understand that. आपको वो समझना बहुत जरूरी That he है paid it. कि उसने कीमत चुकाई है। He paid full to the full. उसने पूरी से पूरी कीमत चुका दी है। You did not need to pay anything else. आपको फिर से कीमत चुकाने की जरूरत नहीं। You should understand he paid it. और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि उसने पूरा कीमत दे दी है। You should understand that what is going on in us. तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। Means today God is calling you to that you may be one with him in such a way. इसका मतलब है आज परमेश्वर आपको बुला रहा है इस तरीके से कि आप उसके साथ एक इस तरह हो If anyone touches you, he touches an apple of his. कि अगर कोई आपको स्पर्श करे यानी वो उसके आँख के पुतली को स्पर्श करता है। God appeared Paul परमेश्वर पौलुस के सामने प्रकट हुआ and in Damascus, दमस्कस में, and he tried and cried unto him. और वो पुकारा, रोया और पुकारा उसकी ओर। Saul said, "Oh Lord, who art thou?" और पौलुस ने कहा कि तुम कौन हो प्रभु, तुम कौन हो? And the Lord said, तब प्रभु ने कहा, "It's he whom you persecute." ये वो है जो जिसको तू सता रहा है। There is a good news for us. हमारे लिए अच्छी सुसमाचार No one है। can touch you.
कोई भी आपको छू नहीं सकता, No one can destroy you. कोई भी आपको नाश नहीं No कर one सकता, can harm you. कोई भी आपको नुकसान If नहीं anyone पहुंचा touches you, सकता। he touches an apple of his. अगर कोई आपको छूता है यानी उसके आँख के पुतली को It छूता is a है। clear witness. God speaks with Paul. और ये सबूत है कि प्रभु पौलुस से बात कर रहा था। Jesus said, "You're persecuting me." यीशु ने कहा कि तू मुझे सता रहा Today we है। need to understand, church, if someone touches you, he needs to touch first God. ये हमें समझना बहुत जरूरी है कलीसिया कि अगर कोई आपको छूता है यानी वो पहले प्रभु को छूता है, So we परमेश्वर need को to be छूता है। prepared in such a wonderful way. तो हमें उस अद्भुत रीति से तैयार होना है। Dare someone touch you? किसी में हिम्मत की वो हमें छुए, Dare anyone harm you? किसी में हिम्मत की वो आपको नुकसान If I पहुंचाए। speak any time about God, I remember my father. अगर मैं कभी भी परमेश्वर के बारे में कहा मुझे अपना पिता याद आता है। I know no one had a dare to touch me. मैं जानता हूँ कि किसी में हिम्मत नहीं कि No मुझे छुए, power in the world have a dare to touch me. और दुनिया में कोई सामर्थ नहीं कि वो मुझे छू सके। Today God wants you to experience the same experience with the eternal God. आज परमेश्वर वही चाहता है कि अनंत काल के परमेश्वर के साथ भी आप ऐसा अनुभव The लो। one who was, who is, and who is to come. वो जो था, जो है और जो आने वाला The है। one who is Alpha and the Omega. वो जो अल्फा और The ओमेगा one who is है। beginning and the end. वो जो शुरुआत और The अंत one है। who is all everywhere. वो जो हर जगह मौजूद The one है। in whom everything is. और वो जिसमें हर एक चीज समाई The हुई one who है। fills all in all. वो जो हर चीज को भरता है। He is your Father God. वो आपका पिता परमेश्वर है। Abraham knew very well. अब्राहम बहुत अच्छी रीति से I'm going to जानता था। fight against the kings. मैं राजाओं के विरुद्ध जाऊंगा। I'm going to fight against the kings. मैं राजाओं के विरुद्ध जाऊंगा। I'm taking my 318 trained people. और मैं 318 मेरे सिखाए हुए योद्धाओं को लेकर जाऊंगा। But पर victory belongs to me through my God. और जो विजय है वो मेरी है मेरे परमेश्वर के द्वारा। Let's read 16th verse. आइए हम 16 वचन पढ़ेंगे। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा He ले आया। went and he brought back all goods. और वो गया, उसने सबको वापस लेकर He आया। brought all women and men और and people. सब चीजों को, धन को, स्त्रियों को और अपने भतीजे को लौटा कर He लेकर brought आया। everything. वो सब कुछ लौटा कर One लेकर आया। single man. एक अकेला व्यक्ति। Everyone came to know that kings came to know. They realized that Abraham has come. और सब जो राजा है वो जान गए कि अब्राहम आ गया है। We can see the same strategy applied in Gideon. वही तरीका जो है गिदियोन ने भी अपनाया. He divided among himself against enemy. दुश्मन के विरुद्ध अपने आप को अलग करके गया. So 3 parts went. और 3 हिस्से बांट And दिए। they were conquered. और वो विजयशाली They were हुए। victorious. और वो विजयशाली There हो is गए। victory in the name of Jesus. यीशु के नाम में विजय There is है। power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। He is same yesterday, today, and forever. और वो कल, आज और युगानुयुग एक जैसा He is है। the one who never changes. और वो है जो कभी नहीं बदलता। He doesn't want you to be divided among ourselves. और वो चाहता है कि हम जो है हम खुद में न बट We जाए। should not be against ourselves. हम खुद के विरोध में न आ That's जाए। why when the people of Israel came to kill Gideon, इसीलिए इजरायली लोग जब गिदोन को मारने आए Gideon said और गिदोन ने कहा that we are the least people. हम जो है थोड़े लोग हैं। If we least can win the battle, अगर हम थोड़े से लोग युद्ध को जीत then what's the सकते हैं, need of all people going there? तो इतने सारे लोगों की क्या जरूरत There है is हम power जाएं? in the unity of mind. मन के एकता में सामर्थ है। There is power in the understanding. समझ में सामर्थ There is है। power in knowing the name of the Lord. प्रभु यीशु के नाम को जानने में There सामर्थ is है। power in the understanding from where comes our victory. और हमारी विजय कहाँ से आती है वो समझने में सामर्थ Let's है। read the verse 17. आइए 17 वचन को पढ़े। Sorry, 15th verse. 15 वचन।
And he divided himself against them by might and smote them. और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा Whenever किया। we part, we divide. जब कभी हम अलग होते हैं, We divide against enemy. जब कभी भी हम अलग दल होते हैं तो हम दुश्मन के विरोध में We are होते not हैं। divided among ourselves. हम अपने आप में अलग अलग There is no division in the body of Jesus Christ. यीशु मसीह के देह में कोई अलगाव नहीं There is है। power in the name of the Lord. प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ There is है। oneness in the name of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकता है। He is a head वो हमारा सर है and we are his body. और हम उसका देह है। He supplies us everything. वो हमें सब कुछ वसीला We देता है। need no good. हमें किसी भी अच्छी बली We बात की did not घटी need नहीं है। anything else. हमें कोई और बात की We can घटी see नहीं that the testimonies are coming very powerfully. हम देख रहे हैं कि जो गवाहियां हैं बहुत अद्भुत रीति से आ There रही is a है। power of God working among the church. अब कलीसिया के अंदर सामर्थ हो रहा है। That a sister said, I prayed. और हमारी बहन ने कहा कि अब मैंने प्रार्थना There was no किया। movement in my hand. मेरे हाथ में कोई But भी I trusted after my हलचल prayer. नहीं थी, पर मैं विश्वास किया प्रार्थना के बाद And God started healing. और परमेश्वर चंगाई There करने appeared लगा। healing. और वहाँ पे चंगाई दिखाई There are दी। many healings and miracles going on the land. और भूमि पर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। Especially in the church and the house of God. खास करके परमेश्वर के घर में कलीसिया There में is power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम There में is healing in सामर्थ the है। name of Jesus. यीशु मसीह By के his नाम में wounds we were चंगाई है। healed. उसके जख्मों से हम चंगे हो गए थे Oh, by his blood we were cleansed. और उसके लहू से हम शुद्ध किए No गए थे। power is able to stand against you. और कोई भी सामर्थ आपके विरुद्ध हो नहीं You are सकता। called by his name. आप उसके नाम में बुलाए So गए you हैं। need to understand where your power lies. तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका सामर्थ You कहाँ पर all है। know my story many a times. आप सभी मेरी कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानते Many a हैं times I boasted on it. और बहुतों बार मैंने उस पर गर्व Oh, किया। hallelujah. If you boast on the name. अगर आप घमंड करते हैं तो परमेश्वर के नाम पे If you घमंड करो। boast that I know my God. अगर आप घमंड करना चाहते हैं तो घमंड कीजिए कि मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ। Oh, today the enemy is coming like a roaring lion. और आज जो दुश्मन है वो गरजते हुए शेर के समान आ रहा है, Seeking whom he may devour and part. खोजते हुए कि किसको वो चीर के फाड़ दे। He is dealing with your thoughts. वो आपके विचारों से He is काम dealing कर with रहा your है। nephew. वो आपके भतीजे He में is काम dealing कर with your रहा है। brother-in-law वो आपके भाई बहन में to काम कर रहा part you है, into pieces. आपको काट कर टुकड़ा टुकड़ा करने के That he may लिए have the banner of his victory. कि वो अपने जय का झंडा गाड़ But सके। today I tell you and declare you. पर आज मैं आपसे कहता हूँ और घोषणा Today करता you need to हूँ, remember Jehovah Nissi. आज आपको यहोवा निसी को याद The करना Lord है। is my banner. परमेश्वर ही मेरा Today झंडा you need to है। remember that Emmanuel is with me. और आपको याद करना है कि इम्मानुएल मेरे साथ है। Oh, Jehovah Jireh, my provider, is with me. यहोवा एरे मेरा देने वाला प्रोवाइड करने वाला God who पिता never मेरे leaves पास me है। nor forsakes me is with me. वो परमेश्वर जो मुझे न कभी छोड़ता है न कभी त्यागता है, वो मेरे साथ है। According to the measure of your faith, the things are going to come into your place. आपके विश्वास के अनुसार आपके अंदर वो चीजें आएगी। You don't believe because you don't hear. आप विश्वास नहीं करते क्योंकि आप सुनते You नहीं। don't believe because you don't hear from the word of Christ. आप विश्वास नहीं करते क्योंकि आप यीशु मसीह के वचन पर भरोसा नहीं करते। You don't believe because you don't have a proper relationship. आप विश्वास नहीं करते क्योंकि आपका सही रिश्ता नहीं है Your उनके साथ। unfaithfulness is a hurdle for your victories. और आपका अविश्वास जो है और आपके लिए बहुत बड़ा अड़खन है. You need to have faith. आपको जरूरी है कि आप विश्वास करें। 15th verse says, as soon as he heard the message about Lut, और 15 वचन कहता है कि जैसे ही उसने लूत का संदेशा सुना, he prepared himself उसने अपने आप को and
And the फैसला same किया। he attacked on that night. और उसी रात को उसने हमला बोल दिया। Now is a high time. अब ये जो समय है बहुत गंभीर है। You need to prepare yourself. आपको अपने आप को तैयार करना है। How can you prepare? आप कैसे तैयार कर सकते हैं? Only one preparation is so necessary. एक की जो तैयारी है बहुत जरूरी है। You should know your God. आपको अपने प्रभु परमेश्वर को Daniel पहचानना said है। that those who know their God, they shall do mighty exploits. दानियल कहता है कि जो अपने प्रभु परमेश्वर को पहचानते हैं वो अद्भुत काम करेंगे। Now is the time to know God. अब ये समय है परमेश्वर को जानना Have है। a strong relationship with Him. उसके साथ गहरा संबंध जोड़ना And है step forward. और आगे कदम Do बढ़ाना not be है। afraid. Do not be dismayed. Do not look to the right or left. आपके दाएं बाएं मत देखो। For one who has called you is faithful. क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास He might have called you in the dark night. हो सकता है उसने आपको अंधेरी रात में बुलाया But He हो। told you to look on the sky. पर उसने आपको कहा है ओ आसमान में Indeed, देखो। there were stars many which can't be counted. ओ देखो वहाँ पर बहुत सारे तारे हैं जो गिने नहीं जा The सकते। same God who never changes is calling you वही परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता वो आपको बुला रहा है। to give you victories after victories. आपको विजय से विजयशाली बनाने। He might have called you into the desert place. हो सकता है उसने आपको बयाबान में बुलाया हो। But He made you to see and clearly. पर वो आपको साफ रीति से दिखाना चाहता है। That can you count the grains of this sand? क्या इस रेती के दानों को तुम गिन सकते हो? No, not at all. नहीं, नहीं। Not possible. ये संभव He is नहीं। God of impossible. वो परमेश्वर He is God of संभव का impossibilities. परमेश्वर He is है। same yesterday, today and वो forever. कल आज और युगानुयुग एक सा है। And you are the children of Abraham through Jesus Christ. और आप अब्राहम के बच्चे हैं क्रिस्त यीशु मसीह So के all the द्वारा। promises are and amen in Christ Jesus. तो सारे अभिवचन हाँ और आमीन है। You क्रिस्त need to यीशु take a के step अंदर। by faith. आपको कदम बढ़ाना है विश्वास के You साथ। need to act like Abraham. अब्राहम के जैसा काम करना है। He went and had a great slaughter. और वो गया और सबको नाश किया। And 17th verse says, 17 वचन कहता है जब वह कदोलार ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में जो राजा की तराई भी कहलाती है उससे भेंट करने के लिए आया। So he went and had a great slaughter. तो वो वहां गया और बहुत बड़ा लूट लेकर आया। The slaughter was heavy. The मारकाट बहुत ही भयंकर था. मारकाट बहुत ही भयंकर था। And he was victorious. और वो विजयशाली हुआ। Let's read 23rd verse. Today God wants you to reject the things which you should reject. और आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उन चीजों को नकारो जिसको आपको नकारना चाहिए। You should learn from God what I should reject, Father in heaven. आपको समझना चाहिए परमेश्वर से कि क्या मैं नकारूं। For what God has called you. किस लिए परमेश्वर ने आपको Why बुलाया God है? called you? परमेश्वर ने आपको What is the क्यों reason of बुलाया? your call? आपके बुलावट का कारण क्या है? Where you're fitting yourself. अपने आप को आप कहाँ रख रहे You're हो? not called to agree with Sodom and Gomorrah's king. आप सदोम और गमोरा के राजा के साथ सहमत हो। You're not called to take anything from him. और उससे कुछ भी लेने के लिए नहीं बुलाया। Even though you had a great slaughter. जबकि बहुत बड़ा मारकाट किया है। He says, don't give me anything. वो कहता है मुझे कुछ भी I'm तेरा not नहीं going to चाहिए। take anything. मैं कुछ भी तेरा Not नहीं even a दूंगा। single thread. एक छोटा सा धागा भी For नहीं। tomorrow you are going to tell me I became rich because of you. क्योंकि कल को तो कहेगा कि मैं तेरे कारण मैं अमीर हुआ। My friend, prosperity comes from him and him alone. हे मेरे दोस्त जो उन्नति आती है केवल उसके द्वारा और केवल उसके द्वारा आती It doesn't है। come from north, south, east, west. वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से नहीं आती। It doesn't come from the people like Sodom and Gomorrah. और सदोम और गमोरा जैसे लोगों में से भी नहीं आती। Prosperity comes from the Lord. उन्नति जो है
परमेश्वर की You ओर से need आती to है। know that from where prosperity comes. आपको जानना बहुत जरूरी है कि उन्नति कहाँ से आती Who है। is behind you? आपके पीछे कौन है? Who is above you? आपके ऊपर Who कौन covered है? you all in all? आपको चारों ओर कौन ढके Who रहता है? gave you this victory? कौन आपको ये विजय दिया? Who is giving you prosperity? कौन आपको उन्नति Who देता is है? pushing you ahead? कौन आपको आगे बढ़ाता Who है? is putting the words in your mouth? कौन तुम्हारे मुख में वचन Who को heals डालता your है? body? कौन तुम्हारे शरीर को चंगा करता Who is the है? creator? कौन सृष्टि का रचयिता Who is the है? finisher? कौन उसे पूरा करने Who वाला fills in है? all in all? कौन उसे पूरी तरह से भर Say, देता He है? is my God alone. कहिए वो मेरा केवल Shout the परमेश्वर है। Lord and say, He is my God. कहिए वो केवल मेरा Say, He is my परमेश्वर है। Father. वो मेरा पिता Say, He never है। leaves nor forsake me. वो मुझे न कभी छोड़ता कभी I न don't छोड़ता boast है। on the chariots. I don't boast on the horses. मैं रथों पर और घोड़ों पर भरोसा नहीं करता। I boast on the name of the Lord. पर मैं प्रभु यीशु पर भरोसा करता हूँ। Today, उसके नाम पर। anything may come against you. आज आपके विरुद्ध कुछ भी क्यों ना But हो today you जाए। need to trust Lord God Almighty. पर आज आपको प्रभु परमेश्वर सामर्थशाली खुदा पर भरोसा The करना one who है। created everything. ओ जिसने सब कुछ रचा। Nothing and nothing has been created without Him. उसके बिना ऐसा कोई भी नहीं है जो रचा गया। Oh, everything. सब कुछ। Everything. हर चीज। Even the 3 nails which nailed Him on a cross. और जो 3 कीले जो उसे उस क्रूस पर लटकाए गए। Even that 3 nails were created by Him. और वो 3 कीले भी उसके द्वारा ही रचे I mean गए। to say इसका मतलब मैं that कहना चाहता anything, हूँ, if it comes against you, अगर कुछ भी आपके विरुद्ध आता it comes है, to bow down before you. वो आपके सामने झुकने के लिए It आता comes to है। bring glory to Him. वो आता है परमेश्वर को महिमा So देने do के not be लिए। afraid. तो डरो Do not मत। be dismayed. चिंता मत Recognize your source. अपने वसीले को पहचानो। Acknowledge your source. अपने वसीले को पहचानो। Know that who is supporting and supplying you. और जानो कि कौन आपको मदद कर रहा है, कौन आपको वसीला प्रोवाइड कर रहा है। Who is the power behind you. और इसके पीछे कौन सा सामर्थ्य What is है? your strength. आपका सामर्थ्य क्या है? Nation's strength are their people. और राष्ट्र की जो ताकत है वो है उसका कौम। उनके लोग. लोग। And but our strength is our Lord our God पर Almighty. हमारा जो सामर्थ्य है हमारा प्रभु Our परमेश्वर strength है। is a Lord who died on a cross. हमारी ताकत हमारा प्रभु है जो क्रूस पर मारा गया। 22nd verse says, 22 वचन कहता है, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ। oh, that means he says in English that only He gave me this slaughter. और इंग्लिश बाइबल में कहता है कि उसने ही केवल मुझे ये विजय दी है। He gave me these victories. उसने मुझे ये विजय दी I है। went no doubt with the 318 people. इसमें कोई शक नहीं, 318 योद्धाओं के साथ मैं Well गया, trained and born in my house. जो बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त किए थे। कसरत किए हुए लोग. कसरत किए हुए लोग, योद्धा लोग जो मेरे ही घर में जन्मे थे। But पर victory comes from the Lord. जो विजय है केवल परमेश्वर Not from the की ओर से chariots है। or horses. वो किसी घोड़ों से नहीं, नहीं रथों रथों से. Not from my power and might. नहीं मेरी ताकत और सामर्थ से, But from Him. पर केवल उसकी Church, ओर today से। we need to renew ourselves. कलीसिया हमें अपने आप को तरोताजा We need to करना है। freshen ourselves. हमें अपने आप को ताजा We करना need to है। declare to the world readily. और हमें दुनिया को के लिए तैयारी करनी है। और दुनिया के सामने तैयारी से घोषणा करना है, He is the one who gives me victory. वो है जो मुझे विजय देता है। Now the time has come. अब समय आ गया है। Every knee shall bow. Every tongue shall confess that Jesus is Lord. कि यीशु ही प्रभु है। So now you open your mouth. अब आपको अपना मुख खोलना Let the है। Sodom and Gomorrah know who is your source. और सदोम और गुमोरा जो है वो जान जाए कि आपका वसीला
क्या है। Let the enemies know who is your source. और दुश्मन भी जान जाए कि आपका वसीला क्या है। You should know who is trying to make a friendship with me. और आपको समझना है कि कौन आपके साथ दोस्ती कर रहा है. Let everyone know who is your source. हर एक जाने कि आपका वसीला क्या है। Let everyone know that who is your power. हर एक जाने कि आपकी ताकत क्या है। Oh, who is the one who supplies you. और वो कौन है जो आपको वसीला You're the- देता है। Abraham, the friend of Lord. और यहाँ पर अब्राहम जो परमेश्वर का दोस्त कहलाता That's why है। God called him, he is my friend. इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपना दोस्त कहा। Because he never counted his strength. क्योंकि अब्राहम ने कभी भी अपनी ताकत नहीं बोली। He counted on God. हमेशा वो परमेश्वर He के trusted on सामने God. टिका रहा। He परमेश्वर depended पे on भरोसा God. किया, परमेश्वर पे निर्भर रहा। He just believed on God. उसने केवल परमेश्वर पे Even at the भरोसा time किया। of the sacrifice of his own son. उसके खुद के बेटे के बलिदान की वक्त He भी knew very well. वो अच्छी रीति से जानता I'm going to था। come back with मैं my son. फिर से मेरे बेटे के साथ वापस लौटूंगा। Today just close your eyes and believe on him. आज सिर्फ अपनी आंखों को बंद कीजिए और उस पर Whatever भरोसा the कीजिए। circumstances may be. वो परिस्थिति कुछ भी क्यों ना Please हो। don't give your ear to the wrong news. गलत जो समाचार है उसकी ओर अपने कान मत दो। It is good for the world is not good for you. क्योंकि जो दुनिया के लिए अच्छा है आपके लिए अच्छा नहीं Good है। news is this. और गुड न्यूज ये है We are conquered. कि हम विजयशाली Good news हैं। is this. जो समाचार We were है healed by his stripes. कि हम उसके Good news कोड़े is खाने this. से चंगे हो गए। Good news is this. और समाचार ये है By his blood we are cleansed. उसके लहू से हम शुद्ध किए Good गए। news is this. और सुसमाचार ये Battle है belongs to the Lord. कि जो युद्ध है वो परमेश्वर की है। And the victory belongs to us. और जो विजय है वो मेरी है। Good news is this. और सुसमाचार We ये will है never be divided. हम कभी भी अलग अलग नहीं होंगे। Good news is this. और सुसमाचार ये है If we are divided, अगर हम अलग अलग हो we are गए divided against the enemy. तो हम दुश्मन के विरुद्ध अलग हो गए। That every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. कि हर घुटना टिके हर जुबान कबूल करे। Victory to the sword of Gideon and victory to the sword of Lord. और गिदोन के तलवार की विजय और परमेश्वर के तलवार की विजय। Today God wants to give the same victory to your sword. और आज परमेश्वर आपके तलवार को वही विजय देना चाहता Even the है। double-edged sword, powerful than the double-edged sword with us. पर हमारे पास दो धारी तलवार है जो उससे भी तीखा तलवार है। उससे भी तीखा तेज तलवार है। We should not ignore his promises. और उसके वायदों को हम नकार न दे। Oh, हम अनजान न रहे. अनजान न रहे। We should believe in him. हम उस पर भरोसा Not to करें। turn to the right or left. आपके दाएं आपके Not बाएं to न sin मुड़ें। against him by unbelief. और अविश्वास के साथ अविश्वास के कारण पाप न करे. Trust him. उस पर भरोसा करें। He is enough for you. वो आपके लिए काफी है। Trust him. उस पर भरोसा करें। There is a victory is laid up for you. आपके लिए विजय रखी है। Trust him. उस पर भरोसा He shall करें। supply all your needs according to his riches. वो आपकी सारी जरूरतों को उसके धन संपत्ति के अनुसार पूरा करेगा। Not just a scoop of ice cream. सिर्फ आइसक्रीम का एक प्याला नहीं। Oh, you might have never thought and dreamt of it. आपने उसके लिए सोचा भी नहीं। He lived, church. वो I mean to say जीवित he है। lived. मेरे कहने का मतलब है वो जीवित Boast है। on that sword. उस तलवार पर अब घमंड करो। He will break the necks up which is hard hardened. और जिसके हृदय कठोर हो गए उनके गर्दनों को वो काट डालेगा। He wants you to be humble and walk with him. वो आपसे चाहता है कि आप नम्र बने और उसके साथ चलें। Be careful for nothing. Trust him beyond all imaginations. किसी भी बात की परवाह न करें। आपके विचारों के परे वो काम करेगा। If you want to be careful, अगर आप परवाह करना चाहते then be हैं careful that no one should seduce you. कि कोई भी आपको चकमा ना दे. Sodom and Gomorrah's king came and he said, सदोम और गुमराह का राजा आया और उसने take कहा, whatever you want. तुझे जो चाहिए लेके जाओ। Oh, hallelujah.
Why this offer has come to me? और ये ऑफर मेरे पास क्यों Why आया? these things are spread before me? और ये सारी चीजें मेरे सामने बिखरी हुई I क्यों should पड़ी accept है? it or reject it. क्या मैं इसे लूं या उसे It's नकार your दूं? personal decision. ये आपका व्यक्तिगत But let निर्णय है। every personal decision be mangled with the decision of the Lord. पर हर एक जो व्यक्तिगत निर्णय है वो परमेश्वर के निर्णय के साथ एक होना We चाहिए। need to love Him with all of our heart, all of our strength, and all of our mind. हमें पूरे मन से, हृदय से और पूरे ताकत से उस पर भरोसा करना। Abraham said, अब्राहम ने कहा, I will not take anything from you. In verse 22. 22 वचन में वो कहता है कि मैं तुझसे कुछ भी नहीं For लूंगा, I raise my hands towards the God of heavens. क्योंकि मैं अपना हाथ जो स्वर्ग में खुदा है उस Moses learned from it. और मूसा ने उससे सीखा And he went on top of that hill. और वो पहाड़ की चोटी पर गया And he raised his hands up to him. और उसकी और अपने हाथों Lord, we surrender to you. परमेश्वर हम तेरी और अपना समर्पण Our करते father Abraham won the battle. हैं। ओ पिता अब्राहम ने युद्ध को जीता। Even though now we are more than 6 lakhs of people, अब हम 6 लाख से भी बढ़कर लोग we are हैं, going to raise our hands towards you. फिर भी हम अपने हाथों को तेरी We ओर, have a people to battle. उनके पास लोग थे जो युद्ध कर But सकते still we थे। raise our hands towards you. फिर भी हम हमारे हाथों We know our God is same yesterday, today and forever. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक So we है। boast not on our influence. तो हम हमारी पहचान पर भरोसा We नहीं boast करते। not on our strength. हमारे ताकत We पर boast भरोसा not on our money and the treasure. हमारे धन संपत्ति पे हम भरोसा नहीं We करते। boast not on a young man or young woman. और जो नौजवान व्यक्ति है, पुरुष है और स्त्री है, उस पर भरोसा But नहीं we करते। boast on the name of the Lord, पर हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर who भरोसा gives करते us victories after victories, हैं। जो विजय के पीछे विजय देता who है, gives crowns after crowns, वो मुकुट के पीछे मुकुट who देता never है, changes his word and repent. जो अपने अल्फाजों को बदलता नहीं और पछताता नहीं। That was a situation in Exodus 79. और वो गिनती और उस निर्गमन 17 और 9 और 9 में कहता है People were in doubt. Is Lord among us or not? लोगों को शक था कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं है। My friends, the whole world is in a doubt. तो हे मेरे दोस्तों, आप ये जानिए कि पूरा दुनिया शक में है। Gods are locked in the rooms. और जो देवता हैं उन्हें रूम में लॉक किया गया है। Hello. But you're free to proclaim Jesus. पर आप आजाद है यीशु मसीह की घोषणा A God who He lives in us. और वो परमेश्वर जो हम में जीवित रहता है, He is going to give you victories after victories. वो आपको विजय से विजय देता रहेगा। People may have doubts, they may live in doubt. जीते हैं या जिएंगे, but you should live in faith. पर आप विश्वास में You जीवित should live in this knowledge. इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। Emmanuel. Emmanuel. इम्मानुएल, God with us. परमेश्वर हमारे साथ Lived among us. हमारे बीच में जीवित Gives रहता है, us victory. हमें विजय देता है। As long as Moses held up his hands, जब तक मूसा ने अपने हाथों को उठाए रखा, Israelites were victorious. इजरायली जो थे वो विजयशाली होते As हैं। he kept his hands down, जैसे उसने अपने हाथ को नीचे किया, Amalekites were winning. अमालकी जो है वो विजय प्राप्त कर रहे Hello, थे। enemy wins when you bow down. और जब आप झुक जाते हैं तब दुश्मन जीतता Never है। bow to enemy. कभी भी दुश्मन के सामने झुको मत। Never be tired of raising your hands towards him. कभी भी उसकी ओर हाथ उठाने में थको Never मत। be tired to give glory to God of heavens. कभी भी स्वर्ग के परमेश्वर को महिमा देने में Never be थक न जाओ। tired to believe on him and him alone. और कभी भी उस पर भरोसा करने में रुको मत। Never turn to the right or left. आपके दाएं और बाएं मत Never करो। shift your faith. आपके विश्वास को हटा मत Never दो। go to the right or left. और दाएं और बाएं मत Come जाओ। back. वापस आओ। Come to him. उसके पास His आओ। hands are wide spread for you और उसकी हाथ आपके लिए खुला है, to give you victory, आपको विजय देने के to लिए, give you encouragement, आपको ताकत to देने lift के you लिए, up. प्रोत्साहित करने
to make you victorious in every battle. हर युद्ध में आपको विजयशाली Never ever depend on your flesh. और आपके शरीर पर कभी भरोसा मत Just करो। surrender to God. केवल उस परमेश्वर की ओर Just समर्पण give Him the करो due glory. और सही महिमा दो। Should we worship Him? क्यों ना Should we close our eyes आराधना and say, Lord, I want to worship you. कहे प्रभु मैं तेरी आराधना करना I चाहता want to give my complete life to you, Lord. हूँ पूरी मेरा पूरा जीवन तुझे देना चाहता People are, हूँ। उलझन में है, I am not going to be confused. मैं उलझन में नहीं पड़ूंगा। My answer comes from you. मेरा उत्तर तेरी ओर से आता है। Lord, प्रभु I raise my hands. मेरे हाथों को मैं उठाता हूँ। We lift our hands to you. हमारे हाथों को तेरी ओर Our coming उठाते हैं। King. हमारे आने वाले राजा की ओर Who reigns within our hearts. जो हमारे हृदयों में रहता है। The battle is yours युद्ध तेरी है and victory is ours. और विजय हमारी है। We खुदा thank you for your love, O Lord. हम धन्यवाद करते तेरे We प्रेम know के that लिए। we can do nothing हम without you. जानते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं Our कर strength सकते। is not enough हमारी ताकत काफी नहीं है without you. तेरे बिना। We know हम जानते हैं we are more than a conqueror. हम विजयशाली से बढ़कर हैं। In just confessing and giving, surrendering our life to you. केवल घोषणा करते हुए और समर्पण करते We हुए church अपने worship you, जीवन God. को We church worship you. तेरी ओर। हे परमेश्वर, हम कलीसिया तेरे सामने झुकते हैं, तेरी आराधना करते हैं। We thank you for your love. धन्यवाद करते तेरे प्रेम के We लिए, thank you for all your grace. सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। With your तेरे- unconditional love. तेरा असीमित प्रेम, असीमित प्रेम, अद्भुत प्रेम. अद्भुत प्रेम, We thank you. हम धन्यवाद करते We हैं। thank you for healing us, answering our prayers. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें चंगाई दे रहा है, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा Today, है। in Jesus' name, आज यीशु मसीह के नाम में Please. तेरी विजय, in Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में